Good morning, children. Today we will begin our new chapter, chapter 7, fractions. Write down today's date and this introduction you have to write. I have written introduction here. You will not write let's begin. आप heading डालेंगे introduction, date डालेंगे and you will write fractions. Spelling of fractions Fractions. Fractions. So, what is fraction? Let's explain. Fraction is a part of a whole. Fraction is a part of a whole. Fraction क्या होता है? कोई बड़ी सा नंबर है, बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा आर्टिकल है, उसका छोटा सा पार्ट, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन. हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर में. 1/2 इज रेड एज 1/2 और 1/2. यहाँ पर टीचर ने READ को रेड पढ़ा है. रीड को रीड पर प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, लेकिन परफेक्ट में उसको रेड पढ़ते हैं. So 1/2 is read as 1/2 and 1/2. 1/4 is read as 1/4 and 1/4 or 1/4. Here quarter means this upon wala 4. When a fraction is formed, the whole is divided into equal size. For example, to take 1/4 of a pizza, it is divided into 4 equal parts. जब भी हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं तो उस फ्रैक्शन में हम जिस चीज का भी फ्रैक्शन बनाते हैं वो सारे ही इक्वल साइड्स में डिवाइडेड होते हैं. जैसे हम एप्पल को पहले कट करते हैं तो हाफ एप्पल कट होता है, एक एप्पल का 2 बनता है, तो वी कट इट फ्रॉम द सेंटर, सो दैट इज अ हाफ ऑफ इट. सो 1, 2, 3 and 4 you will write in your fair copy as introduction. After writing fourth point, this fourth point you will write fifth point. After writing this fourth point you will write this as fifth point. When we divide anything into equal parts, each part is called a fraction of the whole. यहाँ तक आप लिखेंगे point number 5 in your introduction. Now we will read about 1/2. Now see, this is a picture. It is divided into 2 portions. Here also this is divided into 2, this also and this also. This is divided into 2 and one part they have shaded. So this is known as 1/2. 1/2 means from one full they are showing half. When an object is divided into 2 equal parts, then each part is called 1/2 of the whole. एक ऑब्जेक्ट को 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो एक पोर्शन 1/2 कहलाता है. 1 पोर्शन इज नोन एज 1/2. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आई विल शो यू अनदर ऑल्सो. नाउ दिस इज 1/3. ये आपको बुक में नहीं लिखना है, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस. When an object is divided into 3 equal parts, then each part is called 1/3. What it is called? 1/3. Each part is called 1/3. एक पोर्शन को हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड करा है, 3 पार्ट्स में, तो जो 1 पार्ट है दैट विल बी नोन एज 1/3. हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ये टीचर आपको समझाने के लिए बता रही है. नाउ सी दिस 1/4 and 3/4. When an object is divided into 4 equal parts, then each part is called 1/4 of the whole. Now here you see this diagram is divided into 1, 2, 3, 4 part. 1, 2, 3 and 4 part. The shaded part is known as 1/4. शेड कितना है? पूरे 4 में से एक ही शेडेड है, तो हम शेडेड पार्ट तो बोलेंगे 1/4. और जो पार्ट शेडेड नहीं है वो 1, 2, 3 वो 3/4 हो जाएगा. अंडरस्टूड? जो शेडेड है दैट इज 1 out of 4 और जो शेडेड नहीं है दे आर 3 out of 4. Similarly in these diagrams. So, in the above figure, each shaded part represents 1/4 and unshaded part represents 3/4. Understood? ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, टीचर ने समझाने के लिए बताया है. नाउ दिस,
ये भी आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। ट्राई टू नेम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, 1 हैज बीन डन फॉर यू। हमने 1 आपके लिए कर दिया है, इनको नेम दे दीजिए। अब शेडेड पार्ट, हियर दे हैव शोड 1 2 3 4 5, टोटल 5 है हमारे पास। इसमें से शेडेड कितना था? 1, सो आई हैव रिटन 1/5। एंड अनशेडेड हाउ मेनी? 1 2 3 4, टोटल 5 में से 4 अनशेडेड है, सो वी हैव रिटन 4/5। नाउ हियर हाउ मेनी आर टोटल? 1 2 3 4 5 6, सब में 6 टोटल है, so I will write 6 in denominator here. Now shaded, how many are shaded? 2, so 2/6 will be shaded. And what are unshaded? 1 2 3 4, so I will write 4 unshaded. Now here 1 2 3 4 5, total how many are there? 5, so you will write this in denominator. And 1 2 3 are shaded, and 1 and 2 are unshaded, so this will be 2/5. आपको बुक में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए टीचर एक्सप्लेन कर रही है। 1/2, इसमें जो ऊपर का नंबर होता है दैट इज नोन एज न्यूमरेटर, एंड द डाउन, डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, जो नंबर नीचे होता है दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर। टू राइट फ्रैक्शंस वी राइट द सिलेक्टेड पार्ट ऑन द टॉप एज न्यूमरेटर एंड टोटल पार्ट्स एज द डिनोमिनेटर। जो टोटल होते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, नीचे लिखते हैं उसे, और जो सिलेक्टेड है दैट वी राइट एज न्यूमरेटर और टॉप। ये समझने के लिए बोला है। नाउ आफ्टर डूइंग इंट्रोडक्शन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7A। वी विल राइट टुडेज डेट एंड दिस यू हैव टू सॉल्व इन योर बुक। इसे हमको बुक में ही सॉल्व करना है, इसे कॉपी में सॉल्व नहीं करना है। कलर द शेप्स फॉर ईच फ्रैक्शन, कलर द शेप्स फॉर ईच फ्रैक्शन। They are saying you have to color 1/4, 4 में से आपको 1 को कलर करना है। 1 2 3 4, हमारे पास 4 है, इसमें से हमको 1 कलर करना है। यू कैन यूज कलर्स, आप कलर्स यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग माई पेंसिल, सो आई एम कलरिंग इट विथ पेंसिल। So I have colored 1/4. Easy. Now here 3/4. 3/4 में क्या है? 1 2 3 4, 4 में से हमको 3 को शेड करना है। यू कैन शेड एनी ऑफ द 3, जो भी आपको पसंद है आप कोई से भी 3 शेड कर सकते हो। सो कलर नॉट शेड, यू हैव टू कलर इट। सो यू कैन यूज योर पेंसिल कलर्स एंड क्रेयंस ऑल्सो, डोंट यूज स्केच पेन्स। मैंने एक 1 यहाँ शेड करा, देन 2, then 3. You can use colors. Easy. Now here 7/8. You have to shade 7/8. So total हमारे पास 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से कोई से भी 7 आप शेड कर दीजिए। तो I will shade 1 2 3 4 5 6 and 7। हम इन्हें कलर कर देंगे। 1, you can use your colors. अगर हम 8 में से 7 कलर कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? ओनली 1। सो 1 हमने छोड़ दिया और बाकी हमने शेड कर दिया। यू कैन यूज योर पेंसिल कलर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर DEFGHI आप अपने आप करेंगे। यू विल डू इट ऑन योर ओन। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड एंड अनशेडेड। हमें शेडेड बताने हैं और अनशेडेड बताने हैं। इसमें सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर लिखना होगा। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने? 9। तो हम हमेशा अपने पास 9 पहले लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। अब कितने शेडेड है? 1 2 3 4, सो 4 विल बी शेडेड आउट ऑफ 9। सो 4 आर शेडेड आउट ऑफ 9, सो 4/9। नाउ अनशेडेड, अनशेडेड मीन्स किसमें कलर नहीं है? 1 2 3 4 5, सो 5/9। टोटल 9 है, 9 में से 5 आर अनशेडेड। ओके, नाउ दिस सम नंबर B। नाउ हियर शेडेड 1 2 3 4, 4 में से 1 शेडेड है, सो व्हाट विल राइट? 1/4, 1/4। नाउ हियर C and D
you will do. Question number C and D you will do on your own. C और D आप खुद solve करेंगे. Now let's do question number 3. Now question number 3, आपको question number 3 भी book में ही solve करनी है. This full exercise you have to solve in book. This exercise is very easy. So 1/2 of 6. 1/2 of 6 means 6 का आधा. 6 का आधा. आप खुद बताओ, टोटल 6 है, 6 का आधा करना होगा तो क्या होगा? 3. And you can also divide this 6 by 2. You can divide this 6 by 2. 2 3s are 6. So what you got here? 3. That will be your answer. Easy. Then 1/3 of 18. 1/3 of 18. Sorry, 1/3 of 18. आपको 18 को 3 से डिवाइड करना है. So 18 divided by 3. 3 6 are 18. डिवाइड सबको करना आता है. 6 आए, हमने 6 यहाँ लिख दिया. इजी. नाउ 1/6 of 12. 1/6 of 12 मीन्स 1/6 of 12. आपको 12 को 6 से डिवाइड करना है. जब आप 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2s are 12. क्या आंसर आया हमारा? 2. वी विल राइट दिस हियर. इजी. नाउ 1/5 of 10. यहाँ पर आपको 10 को 5 से डिवाइड करना है. 5 की टेबल में 10 कब आता है? 5 2s are 10. सो योर आंसर विल बी 2. नाउ हियर इन 3/7 द न्यूमरेटर इज. न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है? टॉप 1. न्यूमरेटर इज टॉप 1. सो 3 इज आवर न्यूमरेटर. Easy. Now let's do question number 4. Color to make fractions as. Now here we have to color these fractions. 5/9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total 9 दिए हैं. हमें कितना कलर करना है? 5. So I will shade them. 5 stars I will shade. 1 2 3 4 and 5. Any 5 you can shade. Any 5 of your choice. I have shaded 1 2 3 4 5. You can take 1 2 3 4 5 any 5. Now here 5/6. 6 है हमारे पास पूरे, इसमें से 5 शेड करना है. Here 1/3. हमारे पास 3 है, उसमें से हमको 1 शेड करना है. Easy. So out of 3 we have to shade 1. Question number B you will do on your own. Now question number 5. Color to make fractions. 1 has been done for you. 1/3 of 6 is equal to 2. So 6 को इनने 3 से डिवाइड करा तो क्या आया इनके पास? 2. इनने 2 को शेड कर दिया. Now here we have to do 6 को 2 से डिवाइड करना है. Half of 6. Half of 6 अभी हमने करा था. कितने होते हैं? 3. अब आप इस 6 में से 3 को शेड कर देंगे. 1 2 and 3. Any 3 you can shade. Any 3. Now here 1/4 of 8. 1/4 of 8. पहले तो हमको 8 को 4 से डिवाइड करना है. अब 4 की टेबल में 8 कब आता है? 2 टाइम्स. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2. Now 1 and 2. I will shade 2. I have shaded 2 here. You can use your color pens also. आप कलर पेन से भी कर सकते हैं. स्केच पेन से नहीं करेंगे, पेंसिल कलर से और क्रेयन से करेंगे. Now next 2/3 of 9. 2/3 of 9. अभी तक इन सम में हमारे पास न्यूमरेटर 1 था. यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था. लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर 1 नहीं है. So what we will do? First we will write our numerator. This you will write here. Then you will divide them. अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3. और इन दोनों नंबर का आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. वापस सिखाती हूँ मैं आपको. 2 हमको ऐसा का ऐसा यहाँ लिखना है और इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा. तो जो डिवाइड करके नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय जो नंबर हमें यहाँ दिया है. अभी तक हमारे पास 1 दिया होता था तो 1 into 3 करेंगे तो भी 3 आएगा. 1 into 2 करेंगे तो भी 2 आएगा. इसलिए हम 1 से अलग से मल्टीप्लाई नहीं करते थे. बट हियर वी हैव 2. हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 2s are 6. अब आपको 6 में से
3 को शेड करना है। तो 1 2 3, 1 2 and 3 you will shade. Now here 1/3 of 15, ये इजी आप कर लेंगे। Now here 3/4 of 12, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। पहले 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करिए, 4 3 is 12, 3 आया। अब उस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे। सो 3 into 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। अब हम इनमें से 9 को शेड कर देंगे। n is 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Any 9 you can shade. Sums are very easy. Try on your own, children. Now question number 6. What fraction of each shape is shaded? जो भी शेडेड पोर्शन है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो 1 तो इनने कर दिया है हमारे, दूसरा हम करेंगे। Now 1 2 3 4 5. So upon में डिनोमिनेटर you will write first 5. 1 2 3 4 5 5. अब कितने शेप शेडेड हैं? 1 2 3. So you will write here 3. Now here 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 portions are there. कितने शेडेड है? 1 2 3 4. So 4/8. Question number D आप खुद करेंगे. You will do on your own. Now question number 7. Write the fraction for each of the following. 2/4. 2/4. So we will write 2/4. 1/7. So 1/7. 6/9. 6 will come on numerator and 9 will be denominator. Easy. Now rest you will do on your own. बाकी के सम आप खुद ट्राई करेंगे. Question number 8. Now write the fractional numbers in words. Write the fractional number in words. One has been done for you. यहाँ 3 ऊपर था तो इन्हें 3 लिखा है, नीचे 7th लिखा है। ये these numbers are known as ordinal. These numbers are known as ordinals. हम ऊपर का नंबर तो as it is लिखेंगे, लेकिन नीचे 5 है तो हम उसके लिए लिखेंगे 5th। 13 को लिखेंगे 13th, 8 को लिखेंगे 8th, 9 को लिखेंगे 9th, 14th, like this. I am doing A, C, E, G for you. Now this for you will do. So this is 4 13th. So you will write 4 13th, 4 13th, and this will be 1/8, 1/8, and 4 9ths, 13ths and 8ths, 4 9ths. So 4 9ths. ये आप खुद लिखेंगे. 2 5ths, 7 16ths, 3 14th and 5 12ths. Okay. Now next question number 9. Write the fractions in which numerator is 3 and denominator is 5. So how we will write numerator upon denominator? So our answer will be 3/5. And here this will be 7/10. Now question number C and D you will write. Now find the following. Question number 10. ये आपको बुक में ही करना है. Solve in book. 1/3 of 21. Here you have to divide 21 by 3. 1/3 of 21. यहाँ पर आपको 21 को 3 से डिवाइड करना है. अभी हमने सम करा था ऐसा. 3 7s are 21. So answer will be 7. यहाँ पर 16 को 2 से डिवाइड करना है आपको. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट? 8. यहाँ पर 40 को 5 से डिवाइड करना है. 40 को 5 से डिवाइड करना है. 5 8s are 40. So 8 आएगा हमारे पास यहाँ. अंडरस्टूड? सम नंबर D, E और F आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे.
इतना सम प्लस इंट्रोडक्शन आप अच्छे से ध्यान देंगे. डू योर वर्क इन योर वर्क एंड दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर बुक. थैंक यू.